Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम आज भी आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल आमंत्रित हैं। राजीव नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनेजा डांग। Thank you, Sonu. Yes, we begin with the headlines. Falling for sixth session in a row, benchmark stocks plunge around 3%. Sensex closes below 37,000 mark. Nifty settles below 11,000 level. Rupee depreciates 32 paise against the American currency. And global equity indices tumble amid increasing COVID-19 cases and stalemate over further fiscal stimulus. शेयर बाजारों में लगातार छठे सत्र गिरावट। प्रमुख शेयर सूचकांक लगभग 3% लुढ़के। सेंसेक्स 37,000 से नीचे और निफ्टी 11,000 से नीचे हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 32 पैसे की गिरावट में रहा और कोविड-19 के बढ़ते मामलों और अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन पर कोई गतिविधि न होने के बीच घरेलू शेयर बाजार लुढ़के। लगातार छठे सत्र गिरावट दर्ज करते हुए घरेलू शेयर सूचकांक आज लगभग 3% के नुकसान में रहे। ये गिरावट वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली के बीच आई। सेंसेक्स 37,000 के स्तर से नीचे आ गया और निफ्टी 11,000 के स्तर से नीचे दर्ज हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स कमजोरी के साथ खुलने के बाद मंदी की चपेट में आ गया और कुल 2.96% की गिरावट से 1,115 अंक कम होकर 36,554 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 2.93% की मंदी से 326 अंकों की भारी गिरावट आई और ये 10,806 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी भारी बिकवाली दर्ज हुई। मिड कैप सूचकांक 2.14% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.28% की गिरावट आई। Falling for the sixth straight session, domestic equity benchmarks today plunged around 3% amid a heavy sell-off in global equities. The Sensex closed below 37,000 mark while the Nifty settled below 11,000 level. After opening on a weak note, the 30-share BSE index lost further ground and settled 1,115 points or 2.96% down at 36,554. Similarly, the NSE Nifty crashed 326 points or 2.93% to close at 10,806. The broader market at BSE also tumbled. The mid-cap declined 2.14%, while the small cap ended down by 2.28%. Barring Hindustan Unilever, all Sensex components ended in the red. IndusInd Bank was the top laggard, tumbling over 7%, followed by Bajaj Finance, M&M, Tech Mahindra, TCS and Tata Steel. All sectoral indices closed with losses, with BSE IT index dropping 4.5%, followed by tech, auto, metal, realty, basic materials, bankex and finance. Traders said growing concerns over economic recovery and lack of fresh stimulus by central banks led to the global market sell-off. Fears of a second wave of COVID-19 cases in many economies also weighed on sentiment. Traders added a sharp depreciation in the rupee and volatility on FNO expiry day further weighed on the bourses. Rajiv, what do you have to say? Can we attribute this sixth-day consecutive fall due to the resurgence of novel corona cases in Europe and fear of a second lockdown? No, I think more than that, I doubt whether we can live it, any lockdown or anything is required. The fact is that over last 2-3 months, liquidity was driving the global markets, whether it's US, India. Across the world, there was a gush of liquidity which led to this sharp uprise in asset prices. And it's a historical
fact that whenever such kind of quantitative easing is done by central banks, money first tend to go into certain asset classes, and equity is one of them. And all of a sudden what we realize is that, that liquidity machine is not going to be running at the same pace forever. So the moment there was indication that there will be a slowdown, the asset prices have started correcting, because the divergence between what's happening in the companies or on ground economic situation and asset prices, especially the equity ones, had increased to a level where it was tough to sustain. So I think it's just going back to the mean, where prices of assets, equity assets, are going to reflect more towards the reality that companies are going to face both top line and bottom line pressure. These lockdown, all these probably are just something which probably one of the reasons which we can attribute, but probably to me it is liquidity which is more important than anything else. राजीव, जैसा आपने कहा कि लिक्विडिटी अभी तक बाजारों को काफी ज्यादा तेजी दिए हुए थी। इनफैक्ट कुछ हफ्ते पहले तक ऑल टाइम हाईएस्ट के करीब भी थे। इवन यूएस के बाजार, सारे विश्व के बाजारों में हम तेजी देख रहे थे। सो अब आपको क्या लगता है कि सेंट्रल बैंक्स का क्या रवैया रहेगा आगे चलकर, क्योंकि हमने खासी कॉन्ट्रैक्शन देखी है पिछले क्वार्टर में विश्व भर में, और भारत में खासकर आपको क्या लगता है कि क्या मॉनेटरी लेवल पर या फिस्कल लेवल पर कुछ मेजर्स लिए जाएंगे इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स मोस्ट लाइकली जो है इंडिकेशन दे चुके हैं कि वो अपनी उदार मुद्रा नीति के साथ चलते रहेंगे, कि मनी प्रिंटिंग चलते रहेंगे, इन्फ्लेशन टारगेट वो एडजस्ट कर रहे हैं, वो उनको उतना ज्यादा इशू नहीं है। जो इशू है, जहां तक आपने भारत का प्रश्न किया, आई थिंक अराउंड द टाइम जब वैक्सीन आ जाएगी और ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट राउंड ऑफ पीपल मूविंग आउट एंड परचेजिंग शुरू होगा, दैट इज द टाइम तब कुछ फिस्कल स्टिमुलस या मॉनेटरी स्टिमुलस किसी तरीके का भी नीतिगत सपोर्ट करने की उम्मीद है। बिकॉज उस टाइम पे जब रिकवरी शुरू हो और लोग फिर वापस से नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ना शुरू करें, उस टाइम पे थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है उसका ज्यादा होगा। बाकी जहां तक ग्लोबल लिक्विडिटी की बात है, जो जिस स्पीड से पिछले 3 महीनों में दी गई है, चाहे वो उतनी स्पीड नहीं रहेगी। सो मार्केट में जो डर है या जो रिएक्शन है वो ये है कि अब थोड़ी सी स्पीड आफ्टर द फर्स्ट पुश, वो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, तो जो पैसा है वो उतनी तेजी से नहीं आएगा, तो उसकी वजह से बाजार थोड़ा करेक्ट कर रहा है। तो राजीव, आपको लगता है कि कोविड वैक्सीन पर प्रोग्रेस से जुड़ी हुई जो न्यूज है, कभी पॉजिटिव आती है कभी नेगेटिव आती है, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है मार्केट्स के लिए? अभी एक फैक्टर है वो काफी बड़ा। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जब ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेके, ट्रायल्स को लेके थोड़ा सा शंका आई थी, तो बाजार को थोड़ा सा इशू था, बिकॉज वो एक ऐसी वैक्सीन है जो probably more successful, probability of being successful and probability of it being available across the global markets और स्पेशली हिंदुस्तान में मिलने की जैसी आएगी, जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी एज कम्पेयर टू अदर वैक्सीन। तो उसका इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और probably any news related to that would probably be more reacted more positively। बट हमको एक चीज देखनी पड़ेगी कि उस टाइम पे वैल्यूएशन क्या, मार्च में वैल्यूएशन बिल्कुल नीचे चली गई थी, और अगर आप मिड अगस्त तक की बात करें या इवन टिल एज लेट एज अर्ली सितंबर, तो वैल्यूएशन जो है बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। अगर आप अर्निंग को एडजस्ट करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में आनी है, तो वो उस टाइम पे जब ये वैक्सीन की खबर आती है, कैसा आता है, वैल्यूएशन कैसी है, अर्निंग्स कैसे पैन आउट होती हैं, उस पर डिपेंड करेगा। और बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ पॉजिटिव सरप्राइज हो जाए अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर में, उसकी उम्मीद कम है। Rajiv, do you see a paradox in the fact that now that everybody is going through the WFH mode, that is work from home, and IT services should be doing well, but we do see that today they have also tumbled. That's one point of paradox. And the second is that there is a decline in import demand. So can we say that we do have a large surplus of foreign currency? So how do you view these 2 points? See, on the first point, if you look at it, IT stocks have globally done well. I mean, not only in India. I mean, in India, if you look at it, the performance is far less as compared to what, some of the FANG stocks and
other technology companies have done in NASDAQ or other places where there are some good tech companies are listed. Work from, I mean, see, this is one phase. Of course, now what will happen is that the manufacturing companies, every company in the world is going to focus on a digital delivery platform of, probably moving at much faster pace moving towards, an IT integration. So the demand for services is going to increase. The question is how much of that is built into valuations. While Indian IT sector stocks are not quoting at a very expensive valuation, but probably they're close to, if you look at the last 7, 8 year, 10-year averages, where then after 2005, the normalization started happening, they're pretty much towards the higher end. So, well, stock valuation and probably the growth of balance sheet are two different things which we have to separate from each other. Coming to your second part of the question, it's not necessary that all the time surplus is a good indication. I mean, the demand has come down. If the oil is not being imported, that on face of it might appear to be positive, but the fact is that there is a certain slowdown, only then the demand comes down. So I don't think that can be taken as a counter positive factor. Rather, I would take it as a negative factor at this point of time. राजीव, अभी जो बाजार में खासी गिरावट है, जैसा हमने पढ़ा 6 सत्रों से लगातार गिर रहा है बाजार, एक वीकनेस का हम रुख देख रहे हैं बाजार में. ऐसे में जो आईपीओज हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. लास्ट वीक भी आईपीओज आए, अभी भी जो आने वाले आईपीओज हैं उनके लिए उत्साह है. तो आपको क्या लगता है, इसके क्या कारण हैं, कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? देखिए, आईपीओ मार्केट नॉर्मली जब भी बाजार काफी, अगर आप इस पिछले 6 दिन को हटा दें तो बाजार जो थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. आईपीओ आते मार्केट में कभी हैं जब बाजार अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे टुवर्ड्स लास्ट वीक जब पीक हो रही होती है बाजार की, तभी आईपीओ आते. तो आईपीओ इज वन इंडिकेशन के मर्चेंट बैंकर और जो प्रमोटर्स हैं, दे वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ द बुलिशनेस इन द मार्केट. सो इस वजह से वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, अपने आईपीओ लेके आते हैं. जहां तक आपने 2 आईपीओ की बात करी है, दोनों सेक्टर रिलेटेड है आईटी से. ऐसा नहीं है कि वो कंपनीज अच्छी नहीं है. इंडिविजुअली वन हैज टू लुक एट ईच कंपनी, बट वो कि ऐसे सेक्टर से रिलेटेड थे जिनके लिए आज इस समय में जो सेंटिमेंट है वो काफी पॉजिटिव है. सो आई थिंक दैट इज वन रीजन व्हाई वी हैव सीन द रिस्पॉन्स एंड पोस्ट लिस्टिंग बिहेवियर ऑफ दो स्टॉक्स. इट इज नॉट नेसेसरी. आईपीओ बहुत स्टॉक स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक होता है. हो सकता है कोई एक हल्की कंपनी इशू लाए तो शायद उसे इतना ना मिले. अभी एक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड सेक्टर है, उसको उतना रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है. राजीव, आपने फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की, तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो अब जो वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी गई है बैंक्स को, आपको लगता है कि वो पर्याप्त कुशनिंग होगी ताकि इस लिए कि एनपीएज और बैंकरप्सीज और इंसॉल्वेंसीज एकदम से ना बढ़े? क्या इम्पैक्ट होने वाला है बैंकिंग सेक्टर पर, आपको लगता है आने वाले दिनों में इस बात का? उसमें एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, एंड दैट इज रीजन. जो अगर आप देखेंगे करीब 38% जो है बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज का वेटेज है हमारे ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स में, और वहां पे इश्यूज हैं जो अभी क्लैरिटी नहीं है. अभी देखिए, मॉरिटोरियम के चलते किस बैंक ने अपने कहाँ एनपीए किस तरीके से प्रोविजन करे हैं, कहाँ अपनी कमियों को छुपाया, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है. बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स को अंडर द कारपेट पुश कर दिया है. तो वो उनके चलते जब ये मॉरिटोरियम हटेगा, क्लैरिटी इमर्ज होगी, तब थोड़ा सा मालूम चलेगा कि क्या है रियल सिचुएशन बैंक की. कुछ प्राइवेट बैंक जो हैं वो रिकैपिटलाइजेशन अपनी पहले एंटीसिपेट करके कर चुके हैं, पैसा रेज कर चुके हैं. आई थिंक पीएसयू बैंक्स को पैसा रेज करना पड़ेगा, कैपिटल रेजिंग. तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आने वाले दिनों में प्रोबेबिलिटी मोर ऑफ नेगेटिव न्यूज फ्लो ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, और उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर जो है मार्केट पे बैंकिंग स्टॉक्स और बाकी जो फाइनेंशियल क्षेत्र के स्टॉक्स हैं वो आने वाले दिनों में लेके आएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट भी जो है वो प्रेशर में रह सकता है. On the overview of the economic situation, Rajiv, do you think we should be optimistic about a V-shaped economic recovery as people are spending now
less owing to extreme uncertainty induced by the COVID-19 pandemic? Which way do you see this going? Well, honestly, U, V, W, X, Y, Z, I mean, I just can't think of it. Of course, there are certain sectors which are going to have a lag impact. See, as such, we should not forget the fact that all of a sudden, because the markets were moving up, everybody thought that, COVID crisis is over. Yes. No, COVID crisis is still very much on. Look at the number of cases. Everything is on. Yes, people are moving out. People are now more used to it. The fact that people are less scared because now there are treatment protocols, standard operating procedures are there. But the fact remains that we're still in the crisis itself only. So, I think there are certain sectors which are going to take far more time to come out of this. Those sectors have, the banks which have exposure to that sector are going to face problem. All those things are going to happen. So, I don't know whether it's going to be a V, U, whatever, but it's going to take time. It's going to be uneven. There are some sectors, like some of the rural related sectors, did extremely well, as soon as the restrictions were removed. In the rural areas, tractor sales did well, auto sales did much better. Yes. So it's going to be an uneven recovery, that's for sure. And probably I think because there's so much of liquidity, how much it actually gets into consumers' pocket is one factor which is going to determine how fast or how slow we're going to recover. सो इस पूरे जो सिचुएशन है जिसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ कोविड-19 के जो केसेस हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं और अभी भी एक क्लैरिटी नहीं है कि कब तक ये प्रॉब्लम सेटल डाउन होगी. ऐसे में आपकी ब्रॉड एडवाइस क्या रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, आज जैसा मार्केट रहा है, जैसे आजकल आप थोड़े दिनों में हेडलाइन सुनेंगे, बाजार इतने घटिया ही हो गया, तो पहला जो लोग जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, प्लीज डोंट स्टॉप योर एसआईपी क्योंकि बाजार घट गया है या इंडेक्स नीचे आ गया है. सेकेंडली, अगर आप बाजार को जब जिस भी स्टॉक को लें उसके बिजनेस में क्या है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अबाउट बाइंग इन बिजनेस और टेकिंग अ पार्ट इन अ बिजनेस, उसको समझें. और बेटर है कि रूमर्स और जो सो कॉल्ड टिप्स बाजार में घूमती हैं और जो बहुत घूमेंगे अगले दिनों में, और उनसे बचें. एसआईपी के थ्रू रहें. और अगर आप डायरेक्ट एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस कंपनी को स्टडी कर लें. और ये एक स्टॉक को सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं मान लें कि ये 200 रुपए का था कुछ दिन पहले और आज 150 रुपए का हो गया तो ये अच्छा हो गया. स्टॉक उस वजह से, प्राइस की वजह से अच्छे या बुरे इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेने चाहिए. यू हैव टू लुक एट दी बेसिक ऑपरेटिंग मैट्रिक्स ऑफ दैट कंपनी. उसको पढ़ के लें, या तो पहले अपना टाइम इन्वेस्ट करें फिर पैसा इन्वेस्ट करें. तो दूसरी श्रेणी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन से सेक्टर्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कंपनी स्पेसिफिक तो उनको रिसर्च करनी होगी, लेकिन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके आपको लगता है कि प्रॉस्पेक्ट्स लेट्स से अनदर 2-3 इयर्स में ब्राइट हैं? देखिए, सेक्टर्स से ज्यादा आई वुड से कि देयर इज गोइंग टू बी शिफ्ट जो है वो इंक्रीज इन रूरल इनकम आएगा. अभी जो कुछ बुनियादी चेंजेस हुए हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं जो बिल्स के थ्रू, आई थिंक दी इंक्रीज जो इनकम की जो इनकम बढ़ेगी वो रूरल एरियाज में ज्यादा जल्दी बढ़ेगी एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में भी बढ़ेगी ऐसा नहीं है, बट डेल्टा जो है वो रूरल इनकम का ज्यादा होगा. सो जो भी कंपनी, जो भी सेक्टर, चाहे वो कृषि रिलेटेड सेक्टर हो, जो चाहे जहाँ कंपनीज जिनके एफएमसीजी कंपनीज जिनके जो प्रोडक्ट हैं रेंज रूरल डिमांड को ज्यादा कैटर करती है, ट्रैक्टर या उस तरीके रूरल सेक्टर पे की इनकम की तरफ फोकस और फ्लो की तरफ फोकस जो सेक्टर है वो दे प्रॉब्ली विल डू बेटर इन नेक्स्ट not only 2 to 3 years, I think for next 10 years that is going to be the story for Indian markets. एंड राजीव, आपने रिफॉर्म्स की बात की, तो अभी जो इतने सारे फार्म रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स आए हैं जिन पर काफी अभी विवाद भी चल रहा है, जो कि जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स आता है तो यूजुअली हम ऐसा देखते हैं. आपको लगता है कि लॉन्ग रन में ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत को और एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में व्यू करेंगे इन व्यू ऑफ दीज रिफॉर्म्स? फॉरेनर्स करेंगे. आई थिंक that is one area where the reforms will come, but money might come, but I don't think कि उसका ज्यादा कुछ महत्व है, क्योंकि आई थिंक डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही काफी हैं उस चीज के लिए. बट ये वो एक बेसिक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है
जिसकी वजह से जो मनी का फ्लो है, जो इनकम इंक्रीज है, जैसा कि मैंने भी कहा, वो होगी। तो ऑब्वियसली अगर कुछ चीज स्ट्रक्चर लेवल पे पॉजिटिव होती है तो इट इज गुड फॉर अट्रैक्टिव पॉइंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, बट दैट टू बी ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ, क्योंकि अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को एफपीआई की तरह देखें तो बहुत ज्यादा कंपनी लिस्टेड स्पेस में ऐसी है नहीं जो कि उस तरीके से आप डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर प्ले कर सके। जी, आइए अब रुक करते हैं करेंसी बाजार का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 32 पैसे की गिरावट से 73 रुपये 89 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली और विदेशी फंडों द्वारा भारत के बाजार से पैसा निकालने का दबाव निवेशकों की धारणा पर पड़ा और रुपये में कमजोरी आ गई। इस बीच 6 मुद्राओं के समूह की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाले डॉलर सूचकांक में 0.04% की वृद्धि हुई और ये 94.42 पर दर्ज हुआ। आपको क्या लगता है कि ये डॉलर में मजबूती बनी रहेगी, जिसका असर हम रुपए पर भी और बाकी करेंसीज पर देखेंगे? मुझे लगता है कि थोड़ी सी बनी रहेगी, फॉर अ सिंपल रीजन कि पिछले 3 महीने में काफी कमजोर हुआ था रुपी बिकॉज ऑफ द इजी मनी विच वॉज फ्लोइंग। थोड़ा सा अगेन मीन रिवर्जन की तरफ जाएगा रुपया, और नॉट ओनली रुपया, आई थिंक ग्लोबली जो करेंसीज है वो थोड़ा सा वीकन होंगी टूवर्ड्स द यूएस डॉलर। तो एक देखना पड़ेगा कि हमारा रुपी कितना रिलेटिव होता है, कितना वीक रहता है एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट दर्ज हुई। विकसित विश्व में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंताओं ने निवेशकों की जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को प्रभावित किया। वॉल स्ट्रीट में कल रात आई भारी गिरावट के बीच एशियाई बाजारों में मंदी का रुख रहा। शेयर बाजारों में गिरावट के चलते निवेशकों ने पूंजी को डॉलर और अन्य पारंपरिक सुरक्षित विकल्पों में निवेश किया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.6% लुढ़क गया। हांगकांग का हैंगसेंग 1.8% के नुकसान में रहा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.7% गिरकर बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 1.2% की गिरावट आई और जापान का निक्केई सूचकांक 1.1% गिरकर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में सीमित दायरे में हो रहे कारोबार में रुख मिला जुला था। लंदन का फुटसी 0.4% के नुकसान पर था और फ्रांस के कैक में 0.8% की गिरावट थी। हालांकि जर्मनी का डैक्स 0.2% की बढ़त पर था। A look at the U.S. markets now. Well, Wall Street's main indexes plunged yesterday amid business activity in the U.S. and the stalemate in Congress over more fiscal stimulus. On the other hand, concerns about the increasing coronavirus cases also dented investor sentiment. The Dow Jones Industrial Average lost 1.9%, the S&P 500 closed 2.4% down, and the Nasdaq Composite Index tumbled 3%. जहां तक ये फिस्कल स्टिमुलस की बात है, क्या लगता है आपको राजीव, ये एक कहें कि क्रच की तरह बन गया है कि उस पर ही जो सारे बाजार हैं वो निर्भर है? क्या लगता है आपको, उससे जो बेसिक इकोनॉमी है उसको कितना फायदा होगा? देखिए, ये अब से नहीं, 2009 से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इसी क्रच के ऊपर चल रही थी। 2013 में जब पहली इंडिकेशन आई कि उसको थोड़ा सा टाइटन करा जाएगा तो हम जो सुनते हैं टेपर टेंट्रम, वो शुरू हो गया। सो इन माय ओपिनियन प्रॉब्ली ये अब अगले 1-1.5 साल रहेगा, मतलब शायद ज्यादा भी रह सकता है। बट थोड़ा सा मार्केट इसलिए भी वॉलेटाइल होगी क्योंकि कभी भी सेंट्रल बैंक उसी पेस से हमेशा नहीं करते रहेंगे, बिकॉज द मोमेंट दे विल सी कि डीपर डाउन इकोनॉमिक रिकवरी है, शुरू हो गई है, वो थोड़ा सा उसको एकदम धीरे धीरे करके उसको टाइटन करना शुरू करेंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले फेड ने अपना क्वांटिटेटिव बायबैक प्रोग्राम बंद करना शुरू करा हुआ था, अपनी बैलेंस शीट साइज को रिड्यूस करना शुरू करा था। सो ऑल दोस थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग और तब ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करेंगी, थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी ड्यूरिंग दैट पीरियड। And OECD has said that the global economy will contract by 4.5% in the current year. So do you expect some economic recovery in 2021, Rajiv? I think slightly low. I mean, in the later part of that year, or even later than that, is where when you can see. We should understand that when we talk about the global numbers, one country, one number, one base effect can play a
whole, number can change. So it has to be region dependent and specific. And I think probably a lot will depend upon what is the outcome of the US election, how the geopolitical situation changes out of that after those elections, if we see any policy change after that. All that combined together probably situation will become clear, probably towards first quarter of 2021. Right, let's talk about the recent agricultural reforms now. Well, the Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has said that the welfare of farmers would not have been possible without changing laws, and the farm bills passed by the Parliament will be revolutionary. In an interview to a news agency, Mr. Tomar said the minimum support price, MSP, has never been part of law, and wondered why Congress had not brought it into the ambit of law in the last 50 years. He asserted that MSP has always been central government's administrative decision, and it will remain so. The minister alleged that opposition parties are making issue as they do not have anything to criticize the government. He added that the centre has declared MSP for Kharif and Rabi crops, and as soon as Kharif crop is harvested, the government procurement will begin. The minister said the new farm bills give freedom to farmers to sell their produce outside APMC mandis at prices they deem fit without the taxes levied there. Earlier, farmers had to bring produce to mandis where 25 to 30 licensed traders hold auction, and then farmers were forced to sell at whatever price is fixed. Indeed, Rajiv, these are revolutionary reforms, and we've had old laws which had become obsolete, even regressive, I dare say. So those have been replaced, and how do you view this? Of course, the triple laws, as we are calling them, provide a legal framework which will empower and protect the farmer, we assume and presume. I mean, strangely, after 1991, we never thought of agriculture as such an important part of our economy. And there was no market economy in that. I mean, forget interstate, inter-district buying and selling was, banned. I mean, if I wanted to go and buy something from a farmer, I was not allowed to buy it. I mean, in fact, I did try the business model. And but the fact is that I stayed away from it from all those reasons which were present in this APMC. It's what absolute cartel of, all those people, intermediaries, who used to ensure that the cost, when the cost increases, the farmer doesn't get, the end price product increases, the farmer doesn't get anything, but consumer pays. It was them who were getting richer. So, I mean, there has to be an efficient system of procurement, less wastage. All those things probably are going to change now, and it's not going to happen in 1 to 3 years. I mean, it's a phenomenon which is going to take 5, 6, 7, 8 years. Right. Before it actually shows impact. It's a beautiful thing to happen. It'll have long-term ramifications. Right. Absolutely. But at least the process has started. Yes. Yes. अब तेल पर नजर डाल लेते हैं लालिमा. Sure. Oil prices today remained almost flat despite a fall in US inventories last week. Crude prices were trading range-bound amid a stronger dollar and a renewed wave of COVID-19 cases in Europe. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $41.90 per barrel, while WTI crude prices were around $40 per barrel. चलते हैं सोने की ओर. सोने का मूल्य लगातार चौथे सत्र गिरावट में रहा. कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली में सोना 485 रुपए सस्ता होकर 50,418 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी भी 2,081 रुपए लुढ़ककर 58,099 रुपए प्रति किलो दर्ज हुई. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,854 प्रति आउंस पर था और चांदी बिना किसी खास बदलाव के $22.12 प्रति आउंस पर थी. अगर हमें 10 सेकंड में आप बता सकें कि सोने में ये गिरावट का सिलसिला बना रहेगा आगे? थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, बढ़ेगा तो नहीं आने वाले समय में, कुछ समय तक. बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजीव. And now before we close, a reminder of the headlines. Falling for sixth session in a row, benchmark stocks plunge around 3%. Sensex closes below 37,000 mark. Nifty settles below 11,000 level. Rupee depreciates 32 paise against the American currency. And global equity indices tumble amid increasing COVID-19 cases and stalemate over further fiscal stimulus. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. On behalf of my co-anchor Sonu Sood and myself, Lalima Aneja Dang, we bid adieu. Namaskar. Market Mantra.